Good morning, students. Today we will read about computer hardware and components. Chapter 1 of class 7. Computer hardwares. In this chapter we will read about hardwares, but we know that to work in a computer we need a hardware and software both. In this paragraph, computer hardware refers to the physical component that makes up a computer system. Means this is a hardware is a physical component, means a thing which we can touch and see of a computer, which makes computer system. Hardware and software of a computer are always complementary to each other. Hardware and software are always complementary to each other, means they are compulsory for each other. Without hardware, software is nothing. Without software, hardware is nothing. सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं. फॉर एग्जाम्पल योर ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर अगर हार्डवेयर हुआ तो उसकी आत्मा उसकी सॉफ्टवेयर हुई. आत्मा के बिना शरीर का किसी काम नहीं और शरीर के बिना आत्मा का किसी काम नहीं. जिंदा रहने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. Same thing in computer also. Hardware is there, then okay. Software is not there, then it will not work. Software is there, but it should work with the help of hardware, because hardware is a physical part of the software. So they both are compulsory to work in a computer. So there are many different type of hardware that can install inside a connected outside the computer. Different type of hardware we are using. In this chapter we will read about hardware, software. Already previous 6 standard you have learned. In this chapter we will learn about hardwares, and there are two types of hardware we are using. One is internal and one is external. Internal hardware. The hardware device which are installed inside the computer are the internal devices. Internal words only indicate that inside. Internal मतलब अंदर. तो हार्डवेयर डिवाइस, जो भी हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल कंपोनेंट समझ गए होंगे, कीबोर्ड, सीपीयू, दिस थिंग्स. एंड सीपीयू के अंदर भी कुछ चीजें लगती है छोटी छोटी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो डेट आर द इंटरनल डिवाइस, जो अंदर लगती हैं. ओके, एंड दिस पार्ट्स आर ऑलमोस्ट always found inside the computer cabinet. These are always found inside the cabinet. These we can't see outside. We have to open the computer, then only it will be found. For example, first we will read about one more internal hardware, CPU. Central Processing Unit is sometimes called the processor and the brain of computer. Already previous classes you have learned that a brain of a computer is known as CPU, because it works all the operations and controlling of the computer. It runs all the instructions that computer gets from its hardware and software. हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये उनको रन करता है, मतलब इनको चलाने में हेल्प करता है. इसलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं. It carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetic, logical controls and input and output. Which instructions we have given to the computer program by computer programming, it performed by the help of arithmetic problem, logical controls and input and output operations specified by the instruction. जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, इनपुट आउटपुट का दिया है, कि लॉजिकल का दिया है, कि अरिथमेटिक का दिया है, उसके हिसाब से ये अपना काम करता है. द प्राइमरी कंपोनेंट आर द ALU. सीपीयू में कुछ प्राइमरी पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं उसके. मेन पार्ट्स, पहला है ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड डिसीजन ऑपरेशन. इसका काम होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन. लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिकल प्रॉब्लम मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, बड़ा छोटा मोटा पतला टाइप का. डिसीजन मीन्स डिसीजन ऑपरेशन, यू नो डेट वन, येस और नो, डिसाइड करना है कि ये करना है कि नहीं करना. कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर में, मान लो कि कंप्यूटर को उसका नॉलेज ही नहीं है, मतलब उसमें फिट ही नहीं है, तो वो चीज़ करेगा ही नहीं, वो तो डिसाइड करेगा कि नहीं करना. तो डिसीजन मतलब एक टाइप का ये कंट्रोलिंग ब्रेन है उसका. दूसरा पार्ट द CU, कंट्रोल यूनिट, दैट डायरेक्ट्स ऑल द प्रोसेसर ऑपरेशन. कंट्रोल यूनिट ये है एक और यूनिट जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, जो ऑपरेशंस कहाँ जाएगा, किसके बाद किसके काम होना चाहिए, प्लस करना है कि माइनस करना है, ये डिसाइड करेगा. बट करेगा कौन? ALU करेगा. ये डिसाइड करेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है. ओके, नेक्स्ट पेज. Most modern CPUs are microprocessors. Nowadays in laptops we are using this type of big cabinet CPUs are not there. Desktop computer CPUs जो कि एक बड़ा बड़ा डब्बे टाइप के होते हैं, ये वैसे नहीं होता. आजकल हमारे लैपटॉप में छोटे छोटे चिप लग जाते हैं, ये ऐसे टाइप के प्रोसेसर चिप्स, इनको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं. Nowadays ये ज़्यादा यूज होते हैं. दे आर कंटेन एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप. इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा रहता है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं. ये है हमारा CPU का काम करने का तरीका. फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन समथिंग इनपुट, कुछ इनपुट डाला है तुम लोगों ने, वो जाएगा अपने कॉम्बिनेशनल लॉजिकल यूनिट में, डिसाइड होगा क्या होगा. मान लो प्लस माइनस दिया है, मान लो यहाँ तुमने दिया है 2 + 2
तो ये 2+2 इधर जाएगा, इनपुट 2+2 करना क्या है, प्लस करना है, रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज ए टेम्पररी स्टोरेज when the processor needs to add a couple of number, the number and the answer need to be stored temporarily and they are stored in register. फॉर एग्जाम्पल 2+2 तुम्हें करना है तो इसका जो ये वैल्यू आएगा वो थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर रहेगा, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी। इसका काम है बस जैसे काम खत्म होगा इसके अंदर से वो चीज़ गायब हो जाएगा। तो इसे रजिस्टर कर लिया, फिर वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा प्लस माइनस के हिसाब से, फिर मेन मेमोरी में आएगा। जो आंसर आ गया मान लो मेन मेमोरी में आएगा, 2+2 हो गया हमारा 4। ये होने के बाद फिर वो लॉजिकल से होते हुए आउटपुट आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ पर हमने 2+2 = 4 कर लिया। ये एक प्रोसेस है। कंट्रोल यूनिट में ही ALU का सिस्टम लगा हुआ है। ये लॉजिकल कॉम्बिनेशन लॉजिकल डिसाइड कर देगा सॉल्व, और प्लस करना है माइनस करके डिसाइड करके ये आंसर निकाल देगा 2+2 4। Then look at the block diagram of a CPU. The block lines indicate data flow, whereas the blue lines indicate the control flow. ये जो ब्लॉक डायग्राम तुम लोग देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है इसका इस लाइन का इंडिकेट है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल क्या कौन कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, ये इसको कंट्रोल करके उसको भेज रहा है ऐसे टाइप का। और एरोज जो हमारे ब्लैक कलर के एरोज दिए हैं वो करते हैं फ्लो का डायरेक्शन, मतलब कौन कैसे जा रहा है। ये राउंड मार के एक तो वापस आ जाता है वैसे टाइप का। फिर कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। कंट्रोल यूनिट वो कंपोनेंट है सीपीयू का जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल कंट्रोलर, मीन्स कंट्रोल करने का एक सेंट्रल पार्ट। इट मैनेज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स रीड एंड इंटरप्रेट मतलब डिकोड्स करना। मान लो कोई कोडिंग भेजा है किसी ने तो उसको डिकोड करके समझाने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफरिंग दम इनटू ए सीरीज ऑफ ए कंट्रोल सिग्नल विच एक्टिवेट्स अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको डिकोड करेगा, समझेगा और फिर हमारे ALU को बताएगा कि उसे करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। यहाँ देखो द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन माने मैंने बताया था ALU इज सिंपली कंपेयरिंग टू वैल्यूज। लॉजिकल में सिर्फ दो वैल्यू को कंपेयर करता है, इक्वल है, लेस देन है और ग्रेटर देन है क्या है, और बाकी तो सब्ट्रैक्शन एडिशन ही करता ही है। ईच ऑपरेशन परफॉर्म इन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज वेरी स्मॉल। इसमें बहुत छोटे साइकिल होते हैं, फटाफट करते हैं। एंड द कंप्यूटर डज मच मोर डूइंग बिलियंस ऑफ दिस ऑपरेशन एवरी सेकंड। और कंप्यूटर के पास इतना स्पीड है कि वो एक सेकंड में बिलियंस ऑफ ऑपरेशन कर सकता है ऐसे प्लस माइनस के। इट कैन ऑल्सो यूटिलाइज टाइम बेटर। फॉर एग्जाम्पल while adding two number it is can simultaneously fetch the next instruction। प्लस करते करते मान लो तुमने 2 नंबर प्लस करने के दिया, 2 नंबर को प्लस करते करते ये दूसरा इंस्ट्रक्शन भी सुन लेगा। और क्या क्या है हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल हार्डवेयर में। पहला है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव होते हैं इज अ फिजिकल ड्राइव इन अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन बिलो इन ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिस्क ड्राइव मीन्स ये एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं ना, वैसे टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है। डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ, डायरेक्टली पढ़ाता हूँ। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हम लोग डिफरेंट टाइप के डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं आज तक। पहला है हम लोग सबसे पहले यूज़ किए थे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये तुम्हारे पापा लोग यूज़ किए होंगे अपने टाइम पे, जब कंप्यूटर में CD और DVD टाइप या पेनड्राइव टाइप नहीं आए थे। सबसे पहले फ्लॉपी यूज़ हुआ कर रहा था। और फ्लॉपी एज अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव दैट एनेबल ए यूजर सेव डाटा रिमूवल डिस्क टाइप। एंड द फर्स्ट रियल डिस्क ड्राइव यूज्ड इस डिस्क का साइज था 5 1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ज़्यादा साइज है, छोटे छोटे साइज के होते हैं, इतने टाइप के लगभग, विच वेयर लेटर रिप्लेस्ड बाय 3 1/2 फ्लॉपी डिस्क। इतना इनका स्टोरेज कैपेसिटी अलग है। ये जो हमारा A5 1/4 फ्लॉपी डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 360 KB इन डाटा एंड दी 3 1/2 डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 360 बाय अप टू 1.44 MB ऑफ डाटा। ये लोग बहुत कम चीज़ स्टोर कर पाते थे उस टाइम, इसलिए इनको थोड़ा एडिट करके थोड़ा और बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान से देखते रहना, एक जगह नोट्स बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर अदर टाइम्स आफ्टर दिस ड्यू टू देयर लिमिट कैपेसिटी, इतने कम स्पेस के कारण, आजकल तो 1.4 MB का हमारा एक फ़ोटो हो जाता है, इतने कम स्पेस के कारण हम लोगों ने फिर उसको चेंज किया पेन ड्राइव में, CD में और DVDs में। तो पहले हम लोग के पास आए हार्ड डिस्क, ये पेन ड्राइव CDs DVDs में हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। Hard disk is also called hard drives or disk drive is a mechanism that read and write disk and hard disk. The hard disk is a main and usually largest data storage hardware device in a computer. हार्ड डिस्क एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेन है और यूजुअली सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। मतलब इसमें जितना चीज़ स्टोर कर सकते हो बाकी जगह स्टोर तुम पेन ड्राइव CD DVD में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी है हमारा, यहाँ दिया होगा
कहाँ गया, अप टू 1 TB रहता है, 1 TB के ऊपर भी रहता है किसी किसी का, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते पता चल जाएगा। द हार्ड डिस्क हो गया। द हार्ड डिस्क यूज मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज क्वालिटी यूज किया जाता है सिस्टम, एंड इट स्टोर्स एंड रिट्रीव डिजिटल इनकोडेड डाटा ऑन रिपीटेडली रोटेटिंग प्लेटर विच मैग्नेटिक surface, and the data is stored permanently and can be used to store picture, music, videos, text, document and any other file or download it. इसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, म्यूजिक, वीडियोस वगैरह कुछ भी, ठीक है। हाँ ये रहा। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज डिवाइस, ये सबसे कम यूज किए जाते हैं और ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह में दिया होता है पहले से ही अंदर। इट स्टोर वेरीज फ्रॉम गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स, ये GB से लेकर टेराबाइट TB तक पूरा स्टोर कर सकता है, ओके। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में तीन चीज़ें आती हैं हमारी, एक CD ड्राइव आती है, एक DVD ड्राइव आती है और एक BD ड्राइव आती है। CD ड्राइव, DVD और BD का फुल फॉर्म हो गया ब्लू रे डिस्क, CD का तो पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक, ओके। देन here we can see in the front of the drive has a small open and close button that exit and retract। कभी CD बॉक्स वगैरह यूज़ किया, उसके सामने एक तो एग्जिट और रिट्रैक्ट बटन रहता है, उसको जैसे तुम ओपन बटन रहता है, ओपन दबाओगे तो एक तो प्लेट निकलेगा, उसमें CD डालते हैं और फिर हम लोग प्ले करते हैं। उसी में एग्जिट बटन भी रहता है, ठीक है, वैसे टाइप का। एक CD ड्राइव का बात कर रहा है, CD का बात नहीं कर रहा है, ये CD ड्राइव का बात कर रहा है, जो कि हमारे CPU में लगा रहता है। CPU का बटन दबाते एक प्लेट निकलता है, उसमें हम CD डालते हैं और मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। बट आजकल सीरीज का यूज़ ज़्यादा कोई कर नहीं रहा है। देन मोर ऑप्टिकल ड्राइव्स कैन प्ले और रिकॉर्ड लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्क फॉर्मेट। जितने ऑप्टिकल ड्राइव्स, डिजिटल डिस्प्ले ड्राइव्स हैं, वो या तो रीड कर सकते हैं, या तो राइट कर सकते हैं, या तो री राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे पॉपुलर एक्टिव फॉर्मेट्स क्या है, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RM, DVD-R, DVD-R+R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-R, DL, DVD। ये जो DL, RW ये सभी क्या है? The R is this in this format means recordable and the RW means rewritable. For example, DVD-R this can written on just once। ये R जिसके आगे लग गया, फॉर एग्जाम्पल CD-R की DVD-R लग गया, मतलब वो रिकॉर्डेबल है। एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, तुम उसको वापस दोबारा ओरिजिनल फॉर्मेट में ला नहीं सकते। बट RW वाला अगर तुम यूज़ कर रहे हो, जैसे ये है हमारा DVD-RW, ये क्या है, री राइटेबल है, मतलब इसको तुम लोग बार बार अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बार बार डिलीट करके वापस नई चीज़ें डाल सकते हो। बट एक बार R वाले में एक बार डाल दिया जो कि रिकॉर्डेबल है, वो और चेंज नहीं होगा। CD का स्टोरेज याद रखना, CD का स्टोरेज कैन स्टोर अराउंड 700 MB ज़्यादा से ज़्यादा, और DVD कैन स्टोर अबाउट 4.7 GB, एंड सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क जो हमारे BD डिस्क है कैन स्टोर अप टू 25 GB। इनका स्टोरेज थोड़ा याद रखना और कॉपी में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। और ये चीज़ भी याद रखना कि R का मतलब क्या है, रिकॉर्डेबल है, RW का मतलब क्या है, रिराइटेबल है, ओके। देन हमारे पास आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, कभी किसी ने भी CPU खोला होगा। इफ़ यू हैव ओपन द CPU, you have seen a big disk, circuit disk like a structure. This is known as motherboard. A motherboard is a printed circuit board, PCB, printed circuit board. Just write the full forms in your copy. It should be helpful for you. That has most of the internal component and the slot are connected to the other internal components. In this, maximum internal components are there. Small these capacitors, registers are there, and this some USB ports are also there, which are connected to the external components also. It's allocate power and allows the communication between the hardware devices, CPU, RAM, all others. It's allow a communication between other devices and a computer. Means printer example are there, CPU, and this is the main brain. CPU act as a skull. CPU हमारे सर के स्कल का काम करता है CPU, और जो उसके अंदर हमारा जो मेन ब्रेन है जो ये ब्रेन, ये है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड होता है मेन ब्रेन। CPU सिर्फ स्कल का काम करता है, एक कैबिनेट है CPU, ठीक है। CPU काम करता है हमारा स्कल का, कैबिनेट है, और ब्रेन का काम करता है हमारा, मतलब ब्रेन को थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, इसीलिए मदरबोर्ड CPU के अंदर रहता है, जो कि उसका काम है सब कुछ इसी में होता है। ALU इसी में होता है, बाकी ऑपरेशन जैसे यहाँ पर लिखा है, here are few things that a motherboard carries। मदरबोर्ड में क्या क्या स्पेशली रहता है, CPU तो रहता है, CPU चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप रहता है यहाँ पर कंट्रोल करने का ब्रेन, रीड ओनली मेमोरी, रोम भी इधर ही रहता है, हीट सिंक फैन,
एक फैन लगा होगा सीपीयू में, कभी नोटिस किया होगा तुम लोगों, हीट सिंक फैन है, मतलब यहाँ की गर्मी को बाहर निकालने का काम आता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर डिवाइस, इनपुट और आउटपुट के डिवाइस को कंट्रोल करने का चीज़ भी यहीं पर रहता है। यूएसबी पोर्ट्स, बहुत सारे यूएसबी पोर्ट होते हैं जिसमें तुम लोग कीबोर्ड और माउस वगैरह कनेक्ट करते हो। साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स और ग्राफिक कार्ड्स रहता है जिसमें तुम लोग लगा के मूवीज़ वगैरह या तो गेम्स वगैरह अच्छे से खेल सकते हो। उसके बाद होता है हमारा पोर्ट्स। सीपीयू के पीछे नोटिस किए होंगे बहुत सारे ऐसे टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एक ऐसे पिन वाले होते हैं, एक ऐसे पिन वाले होते हैं, एक ऑडियो स्पीकर वगैरह लगाने के लिए होते हैं, ऐसे टाइप के पिन होते हैं। कभी नोटिस किए होंगे तो 7th क्लास में ऑब्वियसली मैंने भी तुम लोगों को फिट करने के लिए बोला, एक बार नोटिस किए होंगे। पोर्ट्स आर द स्लॉट दैट कनेक्ट वन डिवाइस टू विथ अनदर्स। इनका काम होता है कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का। क्या करने का? कनेक्ट करने का। डिवाइस 1 D1 D2 डिवाइस 2, डिवाइस 1 और 2 को कनेक्ट करने का काम होता है स्लॉट्स का, जो कि इनमें ही होते हैं स्लॉट्स। तो ये स्लॉट्स एक दूसरे को बाय हेल्प ऑफ केबल्स वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप। तो ये स्लॉट्स का काम होता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने का। ओके, फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, हमारा मॉनिटर है, सीपीयू से मॉनिटर कनेक्ट है, सीपीयू से प्रिंटर कनेक्ट है, सीपीयू से अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। Peripheral devices means extra device which are using on computer, for example scanner, printer, speakers, etc. Now next topic we have modem. Modem, you may understanding this one. A modem is a device that allow the computer to communicate over a network with other connected computer on the internet. Modem is normally used for internet supply for Wi-Fi. Okay, there are two types of modem, dial-up and Wi-Fi wireless. Dial-up and Wi-Fi. The dial-up operators are a telephone line and require a phone number and log-on credential to make say connection. And the wireless internal modem, wireless our Wi-Fi, can connect wirelessly and without credential in certain cases. It is contained on a board that plugs into the motherboard. This is also connected via motherboard only. It's work to providing internet to the computer. ये इसका काम है इंटरनेट सप्लाई बाय हेल्प ऑफ ए नेटवर्क, इंटरनेट सप्लाई देना कंप्यूटर को। अब ये दो टाइप का इंटरनेट सप्लाई दे सकता है, एक डायलअप वाला होता है, एक वाईफाई वाला होता है। वाईफाई वाला तो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, सबको इसका आइडिया होगा। डायलअप वाला क्या था, पुराने ज़माने में टेलीफोन सिस्टम यूज़ करते थे, बीएसएनएल वायरिंग से वो लोग कनेक्ट करते थे, उसमें नंबर डायल करके वो लोग अपना नेट चलाते थे। द मॉडम इज एन एब्रीविएशन फॉर ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का बनाया गया, मतलब मॉडर्न नाम दिया गया है इस दो नाम से, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है? इट डज द जॉब ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल। इट डज द जॉब ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल। इसका काम है सिग्नल भेजना, सिग्नल पकड़ना और सिग्नल भेजना। ओके, मतलब ये हमारे जैसे मोबाइल टावर्स वगैरह उससे सिग्नल लेता है इंटरनेट का, और इंटरनेट का सिग्नल हमें कंप्यूटर को सप्लाई करता है। इसका काम इतना है। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। Switch mode power supply in one line it is explained. It is used to provide a stable and efficient power supply to the computer. You know that a computer is a very sensitive device which can damage by the fluctuation of electricity. Means अगर करंट अप डाउन हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, उस बिजली गिरी, कुछ भी, उसके वजह से कंप्यूटर हमारा ख़राब हो सकता है कि उड़ सकता है। इसके लिए हम लोग एक स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं जिसका काम होता है कंप्यूटर को स्टेबल मीन्स जितना चाहिए उतना ही करंट सप्लाई करना, ज़्यादा नहीं ना कम नहीं। अगर ज़्यादा गया तो कम करके भेजना, कम गया तो ज़्यादा करके भेजना। तो ये होता है हमारा SMPS। ये भी CPU के अंदर ही लगा रहता है। इसका काम होता है कंप्यूटर को स्टेबल पावर सप्लाई भेजना। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइस दैट आर turned on and off at a high frequency and little storage component which are there providing power when that switch device is in its non-conducting state. वही सेम चीज़ है जो बोला, इसका काम है, मान लो कोई हाई पावर स्विचिंग डिवाइस है, थोड़ा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हुआ कि लिटिल स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये उसको क्या है स्टेबल करके एक पर्टिकुलर अमाउंट में भेजेगा जिससे कंप्यूटर ठीक ठाक चलता रहे। ये सब थे जितना हमने पढ़े अभी, SMPS, मॉडम, फिर अपना पोर्ट्स, फिर मदरबोर्ड, फिर ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड आवर CPU. These all are our internal hardwares. Okay, now we will read about external part. External part maximum students are knowing because external known means outside. The component installed outside the computer are referred to as an external hardware. कोई ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर के बाहर लगा है, कंप्यूटर के अंदर नहीं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर्स। फॉर एग्जांपल
और हाँ, उन एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम लोग एक्स्ट्रा नाम से भी बोले, एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है पेरिफेरल डिवाइसेस. A peripheral device connect directly to a computer but does not contribute to computer primary function. Peripheral device का काम है कंप्यूटर से कनेक्ट होकर काम करना, बट ये किसी भी मतलब इनका ज़बरदस्ती नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है. ये लोग पेरिफेरल है, ये लगाएं भी चलेगा, नहीं लगेगा तब भी कंप्यूटर चलेगा. बट कंप्यूटर के चलने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड आवर मॉनिटर. ये 4 हो गए, मतलब हमारे कंप्यूटर आराम से चलेंगे. और इनके अंदर सॉफ्टवेयर. External hardwares, first we'll read about monitor. Monitors are displays device external to the computer case and connect via cable to a port on the video card or motherboard. Obviously मैंने पहले भी बता दिया है कि मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. एक पोर्ट में मॉनिटर भी कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है सीपीयू में जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसका दैट रिजल्ट विल बी शोन ऑन अ मॉनिटर एज ए डिस्प्ले, टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स लाइक दैट. ओके, इस फॉर्म में दिखाया सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में दिखाएगा, वीडियो फॉर्म में दिखाएगा, ग्राफिक फॉर्म में दिखाएगा, कि साउंड फॉर्म में भी दिखा सकता है. इंफॉर्मेशन जनरेटेड एज आउटपुट बाय द कंप्यूटर. मॉनिटर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज, अब ये हो गया जो भी प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में बताना चाहता है वो हमें ये मॉनिटर शो करेगा. मॉनिटर 3 टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं. कैथोड रे ट्यूब CRT, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड. ये 3 टाइप के हम लोग मॉनिटर्स यूज़ करते हैं आजकल के ज़माने में. CRT थोड़ा पुराना हो चुका है, कैथोड रे ट्यूब डब्बा टाइप का जो कंप्यूटर होता है उस टाइप का. फिर दूसरा हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल हार्डवेयर, कीबोर्ड. कीबोर्ड is used for typing, we all know that one. Okay, the keyboard is used to enter input the information in the computer. जो information तुम्हें input करना है कंप्यूटर के अंदर डालना है वो किसके हेल्प से डाल सकते हो? कीबोर्ड के हेल्प से डाल सकते हो. ओके, then a basic keyboard has sprint keys pressed down to complete an electrical circuit. बेसिकली कीबोर्ड्स में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं जिनको जब हम दबाते हैं तो दबते हैं और नीचे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, जिससे वो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस को पता चल जाएगा कि वो लोग क्या इनपुट करना चाहते हैं. मीन्स क्या नंबर A को दबाया तो A को इनपुट करना है, B को दबाया तो B को इनपुट करना है. इट हैज़ सर्किटरी डेट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एन फॉर्म द प्रोसेसर. इसमें कुछ सर्किटरी है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएंगे प्रोसेसर तक. अंडर ईच की देयर इज अ सर्किट. अब कभी कीबोर्ड अगर टूटता है किसी कारण से भी, जानबूझ के नहीं तोड़ना, कभी टूटता है किसी कारण से भी तो अंदर देखना, अंदर एक सर्किट बोर्ड टाइप का रहता है. सर्किट नॉर्मली हमारा रिमोट के अंदर जैसा रहता है, रिमोट तो कभी टूटा ही वो देखे होगे. अब कीबोर्ड हमारे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अजर्टी कीबोर्ड जो होता है ये कंट्री स्पेशली फ्रांस और बेल्जियम के लिए होता है, क्योंकि सब जगह सेम चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है. क्वाड्स फॉर कंट्री सच एज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. अरेबिक डिफरेंट वैल्यूज टू मस्ट कीज. चाइनीज लेट ओवर ए क्वाड्री कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में ABCD टाइप का है तो उनके में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, अलग स्टाइल में दिया होगा, मतलब पोजीशन या तो स्विच की पोजीशन अलग अलग है वैसे टाइप की. इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं. हम लोग 4 टाइप के कीबोर्ड यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड. फ्रांस और बेल्जियम में एजर्टी टाइप का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्वेजी टाइप का. तो इस चीज़ को तुम लोग एक नोट्स बना के लिख सकते हो कॉपी में अपनी. ओके, उसके बाद इसके बारे में तो सब जानते हैं. द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज ए pointing device which help us to point on a screen. Okay, it detect the 2D motion on the flat surface and then represent the same motion over the screen. हम इसको ग्राउंड में मतलब सरफेस में मूव करते हैं, बट वही मूवमेंट सेम टू सेम मूवमेंट हमारे स्क्रीन में भी होता है. सेम मोशन ओवर द स्क्रीन ऑल्सो. इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस. अब माउस आजकल 2 टाइप के आते हैं, वायर्ड भी आता है, वायरलेस भी आता है. It enables the users to issue instructions to the computer by controlling a pointer on the screen. For example, कीबोर्ड अभी कोई फाइल खोलना है, कोई वीडियो स्टार्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है माउस. क्योंकि कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो माउस से क्या हम सीधा जाएंगे उस फाइल के ऊपर, डबल क्लिक किया, खुल गया. मतलब मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन मिल गया, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन मिल गया कि तुम्हें ये फाइल खोलने हैं. उसके बाद आता है हमारा प्रिंटर टेक्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंटेड ओवर ए शीट ऑफ ए पेपर. प्रिंटर का काम क्या है, नॉर्मल सा सबको पता है. कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट कॉपीज, एक फोटो का सिंबल, एक फोटो होगा कि डॉक्यूमेंट होगा, जो भी होगा, उस डॉक्यूमेंट और उन चीज़ों को हार्ड पेपर में, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में निकालने का काम होता है प्रिंटर का. मीन्स यहाँ से पेपर जाएगा, स्क्रीन में जो भी आ रहा होगा, स्क्रीन में जो भी चीज़ बना होगा, मान लो एक तो कार्टून टाइप कुछ भी बना है, तो वो कार्टून का प्रिंट आउट हमारे प्रिंट पेपर में छप के बाहर आ जाता है.
इसका काम यही है प्रिंटर का। तो ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बाहर लगता है। ओके, प्रिंटर भी बहुत टाइप के होते हैं। टुडेज द मोस्ट कॉमन प्रिंटर यूज्ड विथ ए कंप्यूटर्स आर डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अमॉन्ग दिस लेजर प्रिंटर इज द फास्टेस्ट। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट, लेजर और थर्मल प्रिंटर, ये चारों आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इनमें से जो हमारा लेज़र प्रिंटर है ये फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट प्रिंट करने वाला। ओके, और प्रिंटर्स वेरीज इन साइज, स्पीड, स्पेसिफिकेशंस एंड कॉस्ट। अब प्रिंटर्स का तो आइडिया होगा तुम लोगों को कि इसका साइज़ के हिसाब से, इसके स्पीड के हिसाब से, इसके काम के हिसाब से और इसके टाइप के हिसाब से इसका प्राइस होता है। छोटा प्रिंटर छोटा सस्ता, बड़ा प्रिंटर महंगा। स्कैनर, स्कैनर चेंज द फिजिकल इंफॉर्मेशन टू डिजिटल। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर ने क्या किया, तुम्हें डिजिटल को कन्वर्ट किया फिजिकल में। मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन में वो एक डिजिटल चीज़ को जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको हमने एक पेपर में डाल के बाहर निकाला प्रिंटर के थ्रू, जो कि फिजिकल है, जिसको हम छू सकते हैं। स्कैनर का काम उल्टा है। स्कैनर क्या करता है, फिजिकल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। डिजिटल मीन्स ऑलरेडी कुछ पेपर है, तुम्हें उसे स्कैन करके किसी को ईमेल करना है, कि फेसबुक पे भेजना है, कि व्हाट्सएप पे भेजना है, तो तुम उसको स्कैन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। इट विल कन्वर्ट दैट पेपर इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ए डिजिटल फॉर्मेट दैट विल बी शोन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, तो ये काम है स्कैनर का। कोई भी इमेज हो, टेक्स्ट हो, पेपर हो, जो भी पेपर हो, जो भी फोटोज हो, ये उसको स्कैन करके तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन में ला देगा डिजिटल फॉर्म में। इसको फिर तुम लोग ईमेल के थ्रू डिजिटली शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्कैनर्स। हम लोग टाइप ऑफ स्कैनर कितना यूज करते हैं, 3। फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फैट स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर। आज तक का सबसे ज़्यादा यूज करने वाला स्कैनर ऐसे टाइप का फ्लैट बेड, मतलब बस खोलो ढक्कन, पेपर रखो, बंद करो और स्कैन करो, इस टाइप का। बट एक आता है सीट फेड स्कैनर। इट इज अ सीट फेड स्कैनर, द डॉक्यूमेंट इज मूव्ड एंड द स्कैन हेड इज फिक्स्ड। इस स्कैनर में क्या होता है, ये स्कैन हेड है, ये फिक्स है, ठीक है, और हमें डॉक्यूमेंट को अंदर बाहर करना पड़ता है, जिससे वो स्कैन करेगा। और इस वाले में क्या होता है, हम ढक्कन को उठा सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। बट इन दिस केस वी हैव टू मूव द डॉक्यूमेंट, वी कांट मूव द हेड, वी हैव टू मूव द डॉक्यूमेंट एंड इट विल स्कैन इट। फिर आता है हमारा, अच्छा इसका फोटो नहीं दिया है, सीट फेड का फोटो नहीं दिया है, ये कार स्कैनर का है। ओके, हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर मतलब हाथ में यूज़ करने का स्कैनर। डॉक्यूमेंट है, ऐसे पेंसिल टाइप का रहता है, ये ऐसे रखा, और जब हम लोग इसको मूव करते हैं तो जितने एरिया को ये कवर करेगा, पेंसिल ने मान लो जितने एरिया को कवर किया, उतना एरिया ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है। सिर्फ हमें बस ड्रैग करना पड़ता है, बोला है ना, इट स्कैन टेक्स्ट एंड इमेज बाय ड्रैगिंग द डिवाइस ओवर द पेज यू वांट टू स्कैन। जिस पेज को स्कैन करना है, बस उस पेज के ऊपर इस डिवाइस को ऐसे लेके मूव कर देना है, वो उस पेज को स्कैन कर देगा। फिर आता है हमारा कार्ड स्कैनर। दिस स्कैनर्स आर स्पेशली डिजाइन टू स्कैन बिजनेस कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई कार्ड देना है किसी को तो दोगे ना, बिजनेस में अपनी दुकान में दोगे कि शॉप में दोगे कि बड़े से बड़े कंपनी में दोगे, तो वो कार्ड स्कैनर एक रखते हैं जो कि स्कैन करता है कि तुम्हारा कार्ड सही है कि गलत है। स्कैन कर लेगा और अपने डिजिटल फॉर्मेट में रख लेगा अपने कंप्यूटर में, बाकी बाद में यूज़ कर, क्या पता हार्डवेयर एक कार्ड कभी भी पॉकेट से घूम हो सकता है ना, इसीलिए। फिर आता है हमारा वेब कैम। वेब कैम के बारे में सबको पता होगा, आजकल मोबाइल में भी फ्रंट कैमरा है, कंप्यूटर्स में वेब कैम लगता है, जो कि ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगता है, जिससे हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है, जिससे हम लोग वीडियो कॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वेब कैम के बारे में इतना याद रखो। स्पीकर साउंड के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्टोर करता है डिवाइस लाइक सीडी वगैरह में, हम लोग उसको फिर यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए। स्पीकर का काम है हमें साउंड प्रोड्यूस करने का। ये भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कि हम लोग कंप्यूटर में फिट करते हैं। एक और कंप्यूटर में फिट करने का एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कि है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो अ एक्सटर्नल हार्डवेयर बिकॉज वी कैन कैरी दिस टू अवर्स। ओके, हम लोग इसको लेके घूम सकते हैं। तो सीडी डीवीडी क्या है, उसको हम लोग रखे रहते हैं, जब यूज़ करना होता है सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, और इसलिए वो इंटरनल हो गया, अंदर। और ये पेन ड्राइव बाहर काम करता है, इसलिए ये एक्सटर्नल के पार्ट में आता है। और पेन ड्राइव कनेक्ट होता है यूएसबी पोर्ट में, और यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव का एक और नाम क्या है, फ्लैश ड्राइव, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसमें, यूएसबी पोर्ट में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी याद करने के लिए वो याद रखना चाहिए। और इसको हम लोग बैकअप करने के लिए कि चीज़ें, फोटोज़, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, मूवीज़ एक्सेट्रा हम लोग सॉल्व रखने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका साइज़ भी 2 GB से लेकर 1 TB तक का रहता है। 1 TB मतलब जानते हो ना,
1 TB इज इक्वल टू 1024 GB गीगाबाइट। 1024 GB मतलब 1024 GB का 1 TB होता है, तो इतना तक का साइज़ का हमें पेन ड्राइव मिल जाता है। तो इतना था हमारा ये फर्स्ट चैप्टर में। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।